Labs like Gumaram, large scale electric mobility. Irumata comes, courageous thing road congestion comes such as health benefit, ecological benefit. That's one of the years like Gumar e-cycle go, Kawata Labs, Autonomous Development Council. Then a subsidy component in Ankua, then 40% is subsidy Kamata, cycle when able to dance the no. Then some interest now, then e scheme book e subsidy book subscribe to just be at some like to which is June. Definitely, some market Rasamben change is of summer. Then is some make it an initiative for Tonte, is interest for Tonte, then music and Shaskan Mun Ketanam, influence on the laughs and Unqua. Mata it's also mobility, e-mobility, Kavinanko, concern for environment, ecology, or Kavinanko, Mata, road and car achievement, congestion free, Natala suggestion and going at some role yotano. Then e program in Unqua, Pusimata, even Sambojimata Lusimano, then Nata Ika can Yasomekatan already payments at an oil choice, get a subsidy fee, get is a form of constant. The next thing last guy even with salting. Tinga sama job nun kitchen ke jux ki jaake tana cycle yampo accessories yang duktion is nam sejak yampo ketana maintenance tene operational aspect ka ketana tani ka skat kan vendor mun yang ketana ya chunj brief job sense to kazu charge shun kazu mata cycle mun ketana optimum shun safe shun te part mata yung jini ka tash shun tene chama samala tene samala ka welcome jux tinge tene nyete job lin ki nyachama ketana ka billing mun dikte hodna tene ka jux sajat Then I can flag off even social Kavanako, cycle or not some Suswading Katan, cycle some Juji and Namstil. Some like them late to bunch of Kati, billing much hands to so left of them, Lepcam Tenana, cycle and Ketanaka Namste, then Matahama Taste Ketanam, a direction, road direction, Namko, cycle Shulti catches and attack even social, flag off social. Kaviting is a lost skirt, not an entrance of the lost skirt. Mata in the Zoom Ketanam visual with him at Justin. एक जाओ एक कैसे जाता है एक आराम से जाना है एक के पीछे एक जाए एक के पीछे चलो आराम से लेंगे थोड़ा हाँ सिंगल लेन चलो हाँ ले सुनो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ इसका मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि लद्दाख आने वाले दिनों में कार्बन न्यूट्रल कैसे बने और इस नए यूनियन टेरिटरी जब लद्दाख को नया केंद्रीय शासित प्रदेश बनाया गया था तो वहाँ पे जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो है उन्होंने एक इच्छा जाहिर किया था कि लद्दाख जो है एक मॉडल यूनियन टेरिटरी बने और लद्दाख एक कार्बन न्यूट्रल यूनियन टेरिटरी बने और कोई भी हर सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी डिपार्टमेंट हो या यूटी लेवल पे हो या यहाँ पे कुछ भी प्रोग्राम होता है तो उसमें कोशिश करे कि लद्दाख में जो है इन्वायरमेंट के प्रति जो है कैसे फ्रेंडली चीज़ों को हम इंट्रोड्यूस कर पाए और लद्दाख को जो है धीरे धीरे करके कार्बन न्यूट्रल कैसे बने। तो इस तरह का उन्होंने एक इच्छा जाहिर किया था। तो तब से जो है इस नए यूटी में जो है जो भी कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट चलता है तो उसमें कोशिश होता है वो सस्टेनेबल हो। तो इसीलिए जो है अभी बहुत सारे प्रोग्राम इस यूटी में चल रहा है जो बिल्कुल सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली और हमारे जो है एनवायरनमेंट को जो है कम नुकसान करते हैं। तो ऐसे में जो है ये जो ईवी जो ई साइकिल जो है ये भी हमारा एक छोटा सा एक इनिशिएटिव है। इसमें हमने लास्ट ईयर जो है हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब ने जब ये स्कीम्स हमारे सामने डिस्कशन के लिए लाया
तो हम लोगों ने ये उसमें यही एक थॉट प्रोसेस लगाया कि अगर हम लोग एक दिन में हर कोई खाली साइकिलिंग करें तो जो रूटीन जो है ऑफिस में जाते हैं या रूटीन काम के लिए जो है, जो आसपास के लोग, ज़्यादा दूर से तो आप साइकिल पे ऐसे ले नहीं आ सकते हैं, जो ले के आसपास बैठते हैं वो अगर साइकिलिंग करें, अपने गाड़ियों को छोड़ दे तो हम कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करने में काफ़ी हम लोग सक्सेस हमें मिलेगा। वैसे भी जो है बाय एंड लार्ज लद्दाख में जो है हमारे पास कोई इस तरह का मैसिव कोई इंडस्ट्री नहीं है जो हम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे यहाँ जो भी होता है वो सस्टेनेबल मोड पे होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है जितना हो सके और भी हम जो है जो नुकसान जो है उसको कम से कम कैसे करें, उस तरह का हमारा एक सोच था। तो इसलिए जो है हमने ये ईवी साइकिल हमने जो है सब्सिडाइज पे जो है लोगों को देने का जो है हमने एक प्लान को जो है इनिशिएटेड लास्ट ईयर किया था। लास्ट ईयर उसका जो है उतना सक्सेस दिखने को नहीं मिला, लोगों में कम इंटरेस्ट हमने देखा क्योंकि सब्सिडी हमने बहुत लिमिटेड रखा हुआ था। लेकिन इस बार हमने सब्सिडी को थोड़ा इन्हेंस किया और इसका जो है लोगों में जो है इसका जो है अच्छी तरह से इसका प्रचार किया, पब्लिसिटी कराया, लोगों को समझाया कि साइकिलिंग एक तो अपने हेल्थ के लिए भी बेनिफिट है और साइकिलिंग करने से जो है आप जो है जो ग्लोबल जो कमिटमेंट है उसको जो हमारे जो एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए, जो क्लाइमेट चेंज का जो शिकार जो दुनिया हो रहा है उसमें जो है हम एक इंडिविजुअल कैसे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, उस तरह का जो है हमने लोगों को जब समझाया तो बहुत सारे लद्दाखी जो है वो उसमें इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया और सब आगे आके कहते हैं कि मुझे भी साइकिल करना है। और ख़ासकर इसमें ये प्लेज जो है कि अपना मुझे इन्वायरमेंट को साफ रखना है, ये प्लेज जो है लद्दाख के जो है ऑफिसर्स ने लिया है और इसमें बहुत सारे ऑफिसर्स ने जो है उसका भी फ़ायदा उठाया है। और साथ ही साथ जो है उन्होंने ये प्लेज उठाया कि वो कोशिश करेंगे कि जब अगर कोई ज़रूरत कोई इमरजेंसी वाला काम नहीं आता है कि जहाँ पे उनको गाड़ी लेके जाना है, नहीं तो वो हमेशा उसको साइकिल से ही अपने जो है ऑफिस में जाने का भी इस तरह का जो है एक प्लेज यहाँ पे सभी ने उठाया है। तो ये लद्दाख के लोगों का एक प्लेज है कि हम जो है इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। लद्दाख कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए जो है हर इंडिविजुअल उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता है, तो उसका एक प्लेज हम सब ने लिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये एक हमारा छोटा सा इनिशिएटिव है, तो हमें पूरा उम्मीद है धीरे धीरे करके वी विल अचीव जो हमें चाहिए। ई साइकिल देने का मोटिव ये था कि एक तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली और दूसरा एक हेल्थ के प्रति और तीसरा थोड़ा सा ट्रैफिक में भी, ट्रैफिक कंजेशन बहुत हो रहा है अभी लेह में, उसमें भी कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकता है एक इंडिविजुअल उसको ट्रैफिक को कम करने में। 3 मोटिव ये था। और साथ में एक ये था कि लद्दाख जैसे टेरेन में अगर पहले तो हमारा साइकिल नॉर्मल साइकिल देने का वो था प्लान था, लेकिन टेरेन ऐसा है कि अब ई साइकिल पे ही कंक्लूजन पे आया कि ई साइकिल देने से थोड़ा फ़ायदा ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारा ऊपर खपट बहुत सारे रोड कोई ऊपर जाते कोई चढ़ाई है, इसलिए ई साइकिल पे हम कंक्लूजन पे आया। और सब्सिडी उस हिसाब से दिया कि हमने लोगों को ये चॉइस दे कि कौन सा साइकिल कितने रेंज का ले रहा है। अगर कोई 1 लाख से ऊपर है तो उसका सब्सिडी थोड़ा ज़्यादा रखा है क्योंकि ज़्यादा उसमें लोग आए, और जो 50,000 या 40,000 का कुछ साइकिल खरीदना चाहते हैं तो उसका सब्सिडी थोड़ा कम रखा है, क्योंकि जो बड़े रेंज का होता है वो अच्छा भी होता है, उसका बैटरी लाइफ लाइन और सब कुछ उसका जितना कंट्रीब्यूशन जो कम रेट वाला देते हैं उससे बड़ा वाला ज़्यादा इसमें लॉन्ग लाइफ ही होता है और उसका कंट्रीब्यूशन इन्वायरमेंट के प्रति ज़्यादा होता है। इस बार कितना साइकिल दिया सर? इस बार अभी हमने पूरा ऑनलाइन हमने एक गूगल फॉर्म के द्वारा वो किया था, इनवाइट किया था, उसमें लगभग कोई 100 से भी ऊपर अभी आया है। आज यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो 70 कुछ अभी डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे कर रहे हैं, कल परसों फिर से लेने वाले बहुत सारे आ रहे हैं। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट मोटर्स गैरेज के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर नमग्याल है। सर, आज जो ई साइकिल लद्दाख में लॉन्च हुआ उसके बारे में बताइए, कितना साइकिल लॉन्च हुआ और इसका विजन क्या है? यहाँ पे आज हमने अराउंड 150 साइकिल का डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट किया है। तो कुछ साइकिल्स एक्चुअली इन रूट थे, तो रफली अराउंड 50 साइकिल्स तो हमने आज यहाँ पे डिलीवर भी कर दिया है। देन वी वांट टू गो बिगर, तो हम चाहते हैं कि लद्दाख में ई साइकिल प्रमोट हो,
इसको लोग एडॉप्ट करें। और यहाँ पे जो भी जिस तरह का जो समर का जो कंजेशन का सिनेरियो बनता है, यहाँ पे ट्रैफिक का इशू बनता है, उसमें भी थोड़ा सा इसका एक तरह से हम इसको एक सोल्यूशन की तरफ से देखते हैं। बाकी इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इकोनॉमिकल बेनिफिट्स हैं, तो वो सब तो इसके मतलब एडिड बेनिफिट्स ही हैं। यहाँ पे जो गवर्नमेंट और यहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिपार्टमेंट का ये व्हाट वी ट्राइंग टू डू इज वी ट्राइंग टू बिकम द चेंज एजेंट हियर। हम चाहते हैं कि एक तरह से इसको एडॉप्ट करने के बाद लोग इस यूटिलिटी को समझें कि साइकिल यहाँ पे कोई मतलब ठीक है, हम इसको एक तरह से हम रिक्रिएशन के लिए देखते हैं, बच्चे साइकिल चलाते हैं, तो लेकिन अब यहाँ पे हम इसका पोजीशनिंग कर रहे हैं कि कैसे एक एडल्ट आदमी डे टू डे एक्टिविटी के लिए शॉर्ट जो आपके ट्रिप्स होते हैं घर से किसी भी काम के लिए, ऑफिस के लिए, डोमेस्टिक, वो जो शॉर्ट ट्रिप्स हैं जो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक का, वो सारे शॉर्ट ट्रिप जहाँ तक पॉसिबल हो आप वो 2 व्हीलर से आप इस तरह का यूज़ करके करें, ताकि रोड पे जो इशू बनता है वो इस तरह के कंजेशन का इशू ना बने। तो मैं आई एम श्योर कि ये जो एक इनिशिएटिव है जहाँ पे इस सब्सिडी से एक मोटिवेट होके दूसरे लोग भी इन कमिंग फ्यूचर ऑल्सो इसके बाद जो नेक्स्ट जो ये जो अपग्रेड करेंगे, तो ये अपने पैसे से लोग अपने प्रोविजन से गाड़ी खरीदेंगे इसके बेनिफिट्स को जानते हुए। तो आई एम श्योर कि यहाँ पे इट्स ए वेरी गुड बिगिनिंग, और इसका जो भी हम्बल बिगिनिंग है, इससे ये आगे जो हमारा जो प्रोजेक्शन है और जो हमारा जो विजन है वो काफ़ी बड़ा है। सर आखिर मैं पूछना चाहूँगा, जो इससे पहले यहाँ पर जो ई व्हीकल वगैरह चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। ई व्हीकल यहाँ पे पहले हमने अराउंड 19 ई बसेस हैं, प्लस यहाँ पे 10 ई कार्स हैं, लिमिटेड रूट पे चलते हैं, ठीक है, जहाँ चलते हैं लोगों ने एक्सेप्ट किया है, उसके बेनिफिट को समझा है, लेकिन इसको फर्दर अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है। जैसे आपको डीसी चार्जर चाहिए, फास्ट चार्जर चाहिए, जो रूट पे हर जगह अवेलेबल हो, ताकि अगर कोई पब्लिक भी, अगर कोई प्राइवेट बंदा भी अगर ई कार चलाना चाहे या ई बसेस, यहाँ पे लोग यहाँ पे प्राइवेट जो यहाँ पे जो बिजनेसमैन है वो अगर ई बसेस यहाँ फ्लीट यहाँ पे अडोप्ट करें, तो उनके लिए हर एक ब्लॉक में, रिमोट एरियाज़ में, हाईवे पे बहुत कन्वीनियंटली और बहुत मतलब मल्टीपल जगह पे इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो स्पेशली डीसी चार्जर्स इसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसको मतलब उसको रियलाइज़ करते हुए ऑलरेडी यहाँ पे हमने बिगिनिंग किया है, खलसे में एक लगाया है। तो आने वाले टाइम पे जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो भी इसमें एक स्टेक होल्डर है, उनकी तरफ से प्लस मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से भी ये अलग अलग जगह पे ये इस तरह के डीसी चार्जर लगने वाले हैं, जिसके बाद फिर आप जो भी जो प्राइवेट जो यहाँ के जो है सिटीजन है वो अपना ई कार खरीद सकते हैं और उसको बिल्कुल ही एक तरह से इफिशिएंटली मतलब एक तरह से फर्स्ट क्लास एक ई मोबिलिटी समझ के उसको एडॉप्ट कर सकते हैं, जो चीपर होगा, जो मोर इफिशिएंट होगा, जो पोल्यूटिंग नहीं होगा, जो विंटर में कोई इस तरह का इंजन का इशू नहीं देगा। तो विन विन है। इट्स जस्ट दैट कुछ मिसिंग लिंक्स है जिसको हम यहाँ पे फिलअप करने के लिए अभी ट्राई कर रहे हैं। सर आखिर में ये जो साइकिल है ये तो घरों में भी चार्ज हो सकता है क्या, इसके बारे में? हाँ, एक्चुअली चार्जिंग में क्या होता है कि देयर टू मेन काइंड ऑफ चार्जर, एक डीसी चार्जर, एक एसी चार्जर। डीसी चार्जर के लिए आपको स्पेशली प्लेटफॉर्म चाहिए जो एक जगह लगता है, उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, अराउंड 7-10 लाख का एक मशीन आता है जिससे वो डीसी करंट पे चार्ज होता है, वो फास्ट चार्जर होता है। तो गाड़ी में तो नेचुरली घर पे चार्ज होते हैं लेकिन बहुत स्लो चार्ज होता है। अब ये साइकिल्स में क्या कि बैटरी का जो है टोटल रिक्वायरमेंट है वो छोटा है, कैपेसिटी भी, तो इसमें डीसी चार्जर की जरूरत नहीं है। ये सारे चार्जर आपके जो प्लग चार्जर्स हैं जो आपके घर पे डोमेस्टिक मतलब जो आपके जो प्लग्स है वहाँ पे लगा के आप लोग आराम से चार्ज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हफ्ते में अगर आप एक बार चार्ज करेंगे तो आप एक वीक का यूज़ तो उसमें से आराम से निकल आएगा, क्योंकि नेचुरली साइकिल ही है, आप उस पर बाइक की तरह मतलब सिर्फ उस पर तो नहीं चलाएंगे, उस पर आप नेचुरली अपना फुट यूज़ करेंगे, पैडल करेंगे। तो विद पैडल प्लस जो भी उसमें जो आप डाउन स्लोप में जब आएंगे तो बैटरी अपने आप चार्ज हो जाता है। तो हमने ये सब ट्रायल करके देख के यहाँ पे लाया है। तो आई डोंट कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे साइकिल का कोई चार्जिंग का या इस तरह का कोई इशू आने वाला है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे जो डिस्ट्रिक्ट मोटर गैरेज के डिप्टी डायरेक्टर, जिन्होंने बताया किस तरह से जो लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए कई इनिशिएटिव लिया जा रहा है। तो इसमें से एक जो है आज ई साइकिल लॉन्च किया जो पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। मैं मरूफ संधि, न्यूज़ 18 के लिए लेह से।